this particular topic. Hope you can see the screen. It's permutation and combination. People, this topic should not be considered as difficult, because in permutation and combination, it is all about the fundamental principles of counting. So even if you do not know these jargons, permutation, combinations, right? Those who had not taken maths in class 11th or something, so these terms might appear to be like jargons. So do not worry. But today we are going to take simply how do we become efficient enough to count things. So in today's session, we are actually going to focus on counting things. Eventually, I will take you through permutation and combination as well. As you can see the schedule, we have decided 4 classes on this. Today is the first one, that will be the basics. Yeah, Ambalika, good morning. Ritaman, good morning. Yeah. So hope all set to start. Just write set. People, in this particular topic, I would request your very active participation. It has been some 8-10 years, in time I have been taking classes and all. So I realized one thing, that this particular topic people are very dreaded of. So if you are not good at permutation combination, you will realize that numbers is one topic which we will take eventually, means after this permutation combination. You will find it difficult over there also. So I request, be very active in the chat box. Let us begin the session. So in short, I am calling at PNC. Those people who are preparing for government jobs or something, do not think that PNC is there in the syllabus or not there. We are not studying PNC. We are just studying how to count things efficiently. And that is no syllabus. It can be asked. It's an integral part of aptitude. Right? All right. Let us start the question. Let us start permutation and combination. Let me take a simple example. Suppose there is a room. Okay. In this room, suppose there are D1, D2, D3 and D4. There are 4 doors, and there are, suppose, W1, W2, 2 windows. I am standing here. Ambalika, in how many ways can I enter into the room? This is my room. In how many ways can I enter into the room? 6. Obviously, you could say, sir, I would enter through W1 one way. I would enter through W2 another way. Or I could enter through, I mean, if you can enter through D1 also, matlab doors as well as windows, everything. Okay. All these are entrance points. So you could enter through D1, that is one way, D2 one way, D3 another way, or D4 another way. So you can see that this is nothing but 2 and this is nothing but 4, and your answer is 6 ways. So you understood that here the work was to enter into the room. In how many ways can I enter into the room? It could be either door or the windows. So whenever this or will come, then we will talk about addition. So here 2 ways of entering through windows and 4 ways of entering through doors. So there would be 6 ways of entering inside. This is called sum rule. This is called sum rule. I mean, in order to enter, I could either take this or this or this, all or आएगा, तो इसमें हम add करते हैं. Very simple and very practical also. In the like manner, if I ask you that in how many ways can I enter
through the window and leave through the door. विंडो से एंटर करेंगे और डोर से लीव करेंगे. Then you can see that I can enter through W1 and leave through D4 और W1 के साथ D3 में भी, W1 के साथ D2 and W1 के साथ D1. So there are 4 ways to do it through W1. So I'll enter through W1, leave through any of these 4. In the like manner, I could enter through W2 and leave through D1 or D2 or D3, or I could leave through D4. So here the question is, in how many ways can I enter through the window and leave through the doors? अंदर आना है, अब बाहर निकल जाना है. So here this word and is there. You can see that there are 2 distinct ways of entering through the windows and there are 4 distinct ways of exiting. So here इधर भी 4 था ना, तो 4 plus 4 कितना होगा? 8 ways होगा, which is nothing but 2 into 4, that is 8 ways. So this is called product rule. Sir, when do we multiply? We multiply if I want to in order to do this work, entering and leaving, I am touching the window as well as the doors. Therefore, as well as, and therefore we go for the product. Frankly speaking, permutation combination is over. It is all about adding and multiplying. Right? Okay, if you have understood this simple question. Those who joined late. प्रोडक्ट रूल थोड़ा समझ में नहीं आया. हाँ, प्रोडक्ट रूल समझ में नहीं आया. देखो, so if here for every window I have 4 doors as the option. So W1 के साथ मेरे पास 4 doors का options है. So for every W2 I will have another 4 doors. So ऐसे करके ऐड करें तो ये 8 ways हो जाता है. इसको समझने का एक और तरीका है कि W को करने का कितना तरीका, W एंटर करने का 2 तरीका एंड डोर से लीव करने का कितना तरीका, 4 ways. So total there will be 8 ways of doing this work. I'll give you one more example. Oh, Ankita says please repeat. Ankita, I just asked one question, in how many ways can I enter into the room if there are 2 windows and 4 doors? So the answer is 1 plus 2, 3, 4, 6 ways. किसी से भी आ सकते हैं. This 2 plus 4 हम लिख सकते हैं, that is called 6 ways. And then, and how many ways can I enter through the window and leave through the doors? So there are 2 windows, so there would be 2 ways, distinct ways, and there are 4 doors, so there will be 4 ways. So for every one window there will be 4 options, for every other window there will be 4 more options, which I can say 2 into 4 as 8 ways. Right? Let me give you one more example. Suppose this is Kolkata, suppose this is Delhi, and suppose this is say Punjab ka koi city P. So from Kolkata to Delhi, suppose there are 3 ways. From Delhi to this city, say Patiala, okay, this city there are suppose 4 ways to go. If I have to go from Kolkata to Patiala, in how many ways can I go from Kolkata to Patiala? Right. So it makes sense that if I take this path, I have 4 options. 1, 2, 3, 4. तो पहला पाथ के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन आएगा. If I take this path, again I will have 4 options. If I take this path, again I could have 4 अलग-अलग options. So your answer will be 4 plus 4 plus 4, that is 12 ways. So in how many ways can you go from Kolkata to Patiala? So there are 12 ways. Now this 12 can also be written as 4 into 3, right? So there are, or you could write 3 into 4. So there are 3 ways of going from Kolkata to Delhi, and there are 4 ways of going from Delhi to Patiala. So total there will be
12 ways of doing this work. Everybody please write okay if you have understood. So in how many ways can I go from Kolkata to Patiala? People, I am not dictating the question. If you wish, you can write, ask me to dictate if required. Okay, that's good. Very simple. Now, in the same question, what I'll do, I will introduce, suppose there is one direct way to go from Kolkata to Patiala. So in how many ways can I go from Kolkata to Patiala now? Makes sense? That is, either I would follow this, so many options, there would be 12 ways, or I could have one option, or that is one. समझ में आया? तो यहाँ पर हमने और यूज किया, therefore it is plus. यहाँ पर था 3 into 4 because to reach Patiala I have to go through Delhi. तो this route and this route. So people please appreciate कि जहां भी and की बात आएगी we are talking in terms of multiplication. जहां भी और options हैं, either this or this, then I'll talk in terms of plus. So I can see everybody writing 13. Why not? Why only 3 people? This way, you know, others can also write. अगर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि permutation combination ऐसा है कि मैं directly question नहीं लूंगा. Abhi maybe entire 2 classes today I have to take examples only. Then I'll give you questions from the screen or from by taking you to the question. Yeah. So hope this is clear. So and के लिए multiply और के लिए plus. चल, that's good. Let us get into the question types. Now people, suppose I have 1 2 3 4 5 numbers. ये 5 नंबर हैं, इनको कह रहे हैं हम 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं. सर डिस्टिंक्ट मतलब सर अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, ऑब्वियसली, राइट. नाउ आई वांट टू मेक क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग दीज. आई वांट टू मेक 5 digit numbers. How many numbers can I make? The first one is number of 5 digit numbers that I can make. I do not know factorial, I do not know NPR, NCR, I don't know anything. I only know plus and multiply. So number of 5 digit numbers which I can make without repetition. Please write down. If nothing is given, लिखो note में. If nothing is given, you will not repeat the digits. मतलब ऐसा नंबर नहीं चलेगा जी, समझ रहे हो? 2 2 आप रिपीट नहीं कर सकते. Repetition of the digits का मतलब समझ में आया? So you can see that the first place can be filled in how many ways? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या तो 4, या तो 5. So ये जो या तो मैं कर रहा हूँ, that is or. So the first place can be filled in 5 ways. Now this place is full. सर आप इधर से क्यों नहीं कर रहे हो? People, जब हम numbers बनाते हैं, it is important कि we start from left, because यहाँ पे condition हो सकता है कि, है ना, अगर 0, अगर मैं next question में अगर 0 दे दूं, तो it may not be a 5 digit in that case. So always start from the left, or always start जहाँ condition दिया हो. So the first place, yes, Rupanka says it correct. So first place can be filled in 5 ways. अब देखो ये 5 ways है. अब एक नंबर यूज हो गया ज्ञानेश्वर, तो वो कौन सा नंबर यूज हो गया? कोई भी नंबर यूज हो गया होगा. मान लो वो 2 यूज हुआ होगा, तो मेरे पास इस ब्लॉक बॉक्स के लिए सिर्फ 4 नंबर बचे हैं. सो दिस बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 4 ways. अब देखो 5 नंबर में 2 नंबर यूज हो गया, इस बॉक्स के लिए कितने नंबर बचे? 3 ways. Similarly 2 ways and similarly 1 ways. Now in order to fill all the 5 boxes and this and this and this, तो actually मुझे सारे ways को multiply करना पड़ेगा, right? So which is nothing but 5 factorial. How much? 120. Correct. This is nothing but 5 factorial का value होता है 120. So here you see without repetition है. तो आप ध्यान दो कि suppose there are
6 नंबर्स एंड एक 6 नंबर्स 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, इस 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स को मुझे 6 डिस्टिंक्ट प्लेसेस में अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे? आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल। सर नहीं समझ में आया सर, फैक्टोरियल थोड़ा समझाओ प्लीज, राइट डाउन, नोट्स में लिखो, नोट में लिखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n फैक्टोरियल? n फैक्टोरियल क्या है? इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, अरेंजिंग वर्ड को अंडरलाइन करो, अरेंजिंग n डिस्टिंक्ट आइटम्स, डिस्टिंक्ट वर्ड को अंडरलाइन करो, at n places। जैसे कि 5 स्टूडेंट है, अभिषेक, कौशल, सरबजीत, and suppose D and P, 5 people are there, 5 लोगों को 5 जगह पे मुझे खड़ा करना है। So this could happen in 5 factorial ways। इसको लिखने का एक और तरीका है कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways by anybody। सेकेंड प्लेस अगर फुल हो गया तो अब 4 ही लोग बचे, तो 4, 3, 2, 1, देन मल्टीप्लाई, इट कम्स आउट टू बी 5 फैक्टोरियल ओनली। Yeah, Aryama joined now, so don't know if you have understood the meaning of n factorial. Everybody understands n factorial? Very good. People, please ask me to go back to a particular slide if you feel it is necessary for you to copy. Now, I have 5 numbers. I want to make 4-digit numbers without repetition. If nothing is given, without repetition. So how many numbers can I make? So the first place can be filled in 5 ways, then 4 ways, then 3 ways, then 2 ways. Suppose I want to make 3-digit numbers. The first place can be filled in 5 ways, 4 ways, 3 ways. Multiply करेंगे, यहाँ भी multiply करेंगे. These many ways. समझ में आ रहा है? Very good. Sakshi also got it. Anybody? Any doubts so far? Suppose I want to make 2-digit number. How many numbers can I make? So this place can be filled by any of these in 5 ways. अब एक ये जो प्लेस बचा जो यहाँ यूज हो चुका है उसको आप यूज नहीं करोगे, तो 5 नंबर में से 4 नंबर का ही ऑप्शन है, there would be 20. All right, I have given enough examples on the same line. Let's continue. Same set of numbers 1, 2, 3, 4, 5. Deepak, I am not getting answers from you. एक और नंबर ले लेते हैं 6. I want to make 4-digit number. Condition is the 4-digit number is divisible by 5. चलो start. There are 6 distinct numbers. The condition is the 4-digit number which you will make should be divisible with by repetition 5. or without repetition? हाँ, With repetition या without repetition? of course nothing is given, it is without repetition. इसको नोट कर लो, कुछ लोग बड़े परेशान रहते हैं, वो सोचते हैं कि सर विथ रिपीटिशन था कि विदाउट था, इसलिए मैं छोड़ दिया। एंड समटाइम्स ऑप्शंस अगर मैच नहीं करता है तो आप विथ रिपीटिशन भी ट्राई कर सकते हो, बट इन जनरल इफ नथिंग इज गिवन डू द क्वेश्चन विदाउट रिपीटिशन। लिख लो जी, मोहिना इज गेटिंग 61. ओके, सो हाउ मेनी numbers which are divisible by 5? So what is the condition for the number to be divisible by 5? The last digit should be 5. ध्यान सुनना, मतलब कि लास्ट वाला जो बॉक्स है, सर आप यहां से क्यों शुरू कर रहे हो सर? क्योंकि यार यहाँ पे कंडीशन है, इसको पहले मैं फुलफिल करूं, तो इस बॉक्स को फिल करने का एक तरीका, 5 को रखने का एक ही तरीका होगा। अब आ जाओ स्टार्टिंग में, इस बॉक्स को फिल करने कितना तरीका?
अब देखो 5 ऑलरेडी यूज हो चुका, विदाउट रिपीटिशन है, दोबारा 5 आप अलाउ नहीं करोगे। तो फर्स्ट प्लेस में कौन कौन आ सकता है? 1 2 3 4 और 6, यानी 1 2 3 4 और 5 ऑप्शंस है, राइट। इन द लाइक मैनर 2 नंबर यूज हो गया, 1 2, कौन सा यूज हुआ आपको नहीं पता, ये पता है मगर ये नहीं पता, बट दो कोई ना कोई तो 2 यूज हुआ है। Therefore, out of 6 numbers, 2 number use हो गया, 4 numbers are left, and by symmetry 3 numbers are left. Somebody writing 60, that's correct. Why only 1 2 3 people answering? People, इस टाइप का जो एक्सरसाइज में करा रहा हूं ना, मैं एक मिनट टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि एक मिनट वाला क्वेश्चन नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपका आ गया, आप फटाक से अपना आंसर डाल दो, ताकि मैं आपसे बात करूं अगर आपका मिसमैच आ रहा है। देवप्रियो, इज दैट ओके? कहाँ गलती था सर? मेरा मेरा आपने 3 डिजिट नंबर बोला है ना? 4 बोला यार, 1 2 ओ 3 अच्छा 4। 4 बोला, मैं उसको 3 करके कर दिया, सॉरी सर। और एक चीज ध्यान देखना, जितने मैं बॉक्स लाइंस बनाऊंगा ना, उतना डिजिट की बात कर रहा हूं। अभी मैं 4 डिजिट की बात कर रहा हूं। सरबजीत, इज दैट ओके? दिशा, I multiply the last box by taking 5. Okay, so please understand, ये 5 हम नहीं यूज, 5 को रखने का कितना तरीका है, एक ही तरीका तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विल बी देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2? स्टार्ट। चार डिजिट नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। दीपक, नो आंसर्स फ्रॉम यू, बना भी रहेगी नहीं। Who else? अंकिता, अन्वेषा, ऋतुमन, घबराना नहीं है, ठीक है। आप अब ट्राई करो, अपना आंसर डालो। All right, that's fine. So a number is divisible by 2 conditional. अब जो हम इस क्वेश्चन में इस यहाँ कर रहे हैं, हम लोग कंडीशंस पर कर रहे हैं। कंडीशंस कुछ भी हो सकता है, अप्रोच यही होगा। तो 2 का कंडीशन क्या हो सकता है कि लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है? या तो वो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6। तो या तो मतलब क्या, इसको भरने का 3 तरीका, इस बॉक्स को भरने का। कार्तिक देखना, इस बॉक्स को भरने के मतलब कि मैंने सिर्फ एक नंबर यूज किया है। या तो वो कभी 2 हो सकता है, कभी 4, कभी 6, बट नंबर एक ही यूज हुआ है। अब आ जाओ यहां पे, ये बॉक्स कितने तरीके से भरेगा? 6 नंबर में से एक नंबर, यस 5 वेज, दैट्स गुड। अब 2 नंबर यूज हो चुका, ये बॉक्स कितने तरीके से भरेगा? 4। और ये बॉक्स कितने तरीके से भरेगा? 3। 180, very good. I'm matching the calculations from you guys. Wonderful. So I hope you are understanding कि ये ways हम लोग किसको ways कहते हैं। अगर with repetition होगा जी, आ जाओ थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 with repetition। नेक्स्ट लिखो, 4 डिजिट का बना रहे हैं हम नंबर, नो कंडीशन, बस 4 डिजिट का नंबर बनाओ। 6 to the power 4, sir. Wonderful. So first place can be filled in 6 ways. Second place, अगर आपने यहाँ 2 लिखा था तो यहाँ फिर 2 allowed है। Therefore, still you have 6 options. Therefore, this place can be filled in 6 ways, 6 ways, 6 ways. So answer will be multiplied 6 power of 4. अब मान लो क्वेश्चन रहा कि how many are divisible by 2? चलो आ जाओ, कंडीशन है 2 से डिविजिबल, so the last place could be 2, could be 4, could be 6, इस पर कंडीशन है। So this place has to be 3 ways. अब इस बॉक्स के पास ये सोचता है मेरे पास ऑप्शन कितने हैं यार, तो विदाउट विथ रिपीटिशन है मतलब यस, तो 6 नंबर स्टिल अवेलेबल है इसके पास। सो 6 ways, 6 ways, 6 ways. So answer is 6 cube into 3. No, yeah, Dipanshu, 6 power of 4 is the first one, and second one is 6 cube into 3. Wonderful. So far, everybody, please write fine if you have understood. We are going to increase the difficulty level now. Raj is there, Mehul,
फाइन फाइन फाइन, ऑल राइट। दीपक कहाँ गया भाई? ठीक है दीपक। अंबालिका गुस्सा है क्या? बोल नहीं रही है कुछ? बोल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाओ जी, जरा मजा आ जाए अगर आपका आंसर आ गया तो। 1 2 3 4 5 6, 4 डिजिट का नंबर बनाओ। कंडीशन है कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए। फटाफट 4 डिजिट का नंबर बनाओ। कंडीशन इज 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सर विथ और विदाउट रिपीटेशन? तो दोनों बनाओ इस बार। विदाउट बनाओ और एक आंसर दे दो विथ का। विदाउट रिपीटेशन RPT एंड विथ रिपीटेशन। अंबालिका बोल रहा हूँ, क्या नाम था उसका? ए से इतनी लड़कियां, मुझे तो लगता है जितनी लड़कियां सब ए से है क्या? नहीं नहीं, ओके। 60 and 125. Somebody is writing. Make it fast. चल, ऑफकोर्स इस टॉपिक में हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। थोड़ा आप रॉ फॉर्म में भी रख सकते हो कि 6 इंटू 6 इंटू 6, रॉ फॉर्म में छोड़ दो, मैच करना, लिख देना आंसर सेम। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग विदाउट रिपीटेशन। नंबर डिविजिबल बाय 4 without repetition. So what is the divisibility rule of 4, Karthik? The last 2 digits should be divisible by 4. So what are the possibilities? Repeat नहीं करना है. So what are the possibilities? तो देखो, I think last 2 में 1 2 आ सकता है, 1 3 नहीं आएगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 1 6 तो 1 6 होगा. अब देखो 2 से स्टार्ट करो, 2 1 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा. इस तरीके से सारे केसेस लिखना होगा आपको, और नहीं होगा. चलो 3 से स्टार्ट करो. तो सर मैं ना भूल जाता हूँ सर कि कैसे करना है यार. आप ना सीक्वेंस में करो, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, तो आपको दिख जाएगा 32 आएगा, 36 आएगा. 40 के बाद 40 के केस में आई थिंक 42 भी नहीं आएगा, 40 से बनेगा ही नहीं. 5 से 52 बनेगा, 6 से 5 से एक और बनेगा, 56 भी बनेगा, और 6 से कितना बनेगा, 6 से 62 64, no 64, yes, correct. So these two places can be filled in 8 ways. दोनों को एक साथ उठाओ तो ये हो गया 8 ways. Now you have actually used 2 numbers out of total 6 numbers. How many numbers are left? 4 numbers. So this place can be filled in how many ways? 4 ways. This place can be filled in how many ways? 3 ways. So answer is 4 into 3 into 8. Any doubt? किसी का मैच नहीं कर रहे क्या? 12 8 से 96 होगा ना जी? Oh, this like nobody is getting the same. Is this clear? सर ये विदाउट रिपीटेशन वाला है. हाँ देखो ना, लिखा मैंने विदाउट रिपीटेशन. 6 नंबर है ना अंकित, 6 में आपने 2 नंबर यूज कर लिया, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस इस बॉक्स के लिए कितने बच गए? सिर्फ 4. अब 1 2 3 नंबर यूज हो चुका, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस इस बॉक्स के लिए कितने बच गए? सिर्फ 3. तो 4 3 12, 12 इंटू 8 96. मैं 5 तक पकड़ा था, 6 तक पकड़ना था. ठीक है सर, सही है ना? देख लेना यार, क्योंकि आंसर मैच करने के लिए यहाँ से सही से कॉपी करना है. ठीक है, 6 पावर ऑफ 2 12. क्या बोल रहे हो जी? अच्छा सेकंड का आंसर बोल रहे हैं क्या? चलो नेक्स्ट, विदाउट विथ रिपीटेशन. विथ रिपीटेशन लिखो नेक्स्ट. 1 2 3 4 5 6. चलो 4 डिजिट. एनीवे लास्ट में ये 8 केसेस जो थे अभी के तो आएंगे, 8 केसेस. और कौन सा एक्स्ट्रा केसेस होगा जी?
44 और कुछ? क्योंकि 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 6 6 5 5 ये भी तो देखना पड़ेगा। सो 8 केसेस जो पहले वाले हैं प्लस 44, दैट मीन्स टोटल 9 cases. So this 2 boxes can be filled in 9 ways. Sarabjit, is that okay? Now the first place can be filled in how many ways? Obviously, it can be filled in 6 ways. क्योंकि repetition allowed है. And this one also 6 ways. So answer will be 6 into 6 into 9. Right? Okay, if you have understood. So can you repeat why 9? Yeah, why 9? यार एक्चुअली मैंने समय बचा लिया, ये सारा केसेस तो मेरा आएगा ही ना, 1 12 16 24 सब, ये तो 8 केसेस आएगा। सो ये Yes, मैंने sir. लिख दिया 8 केसेस फ्रॉम द प्रीवियस पेज। और ये 44 भी तो एक केस होगा। एनीबॉडी, एनी डाउट? सर नेक्स्ट वाला स्लाइड में हाँ जी सर 4 into 3 क्यों होगा? ये 6 into 6 into 9 होना चाहिए ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ये विदाउट है ना जी, पहला मैं तो बना रहा हूँ विदाउट। रिपीटेशन वाला बोल रही हूँ मैं। हाँ, तो 6 into 6 into 9, ठीक है। तो क्या ये संभाले को ऋतुमन एक बार रिपीट करेंगे। ओके ऋतुमन देखो, मे बी मैं थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्टकट कर देता हूँ, इस कारण दिक्कत होती है। लास्ट फिर से देखो, आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, लास्ट 2 digits should be divisible by 4. So what are the possibilities? 12, 16, 24, 32, 36, ठीक है, 52, 56 और 64। कितना केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। मगर एक और केस आएगा ना 44, क्योंकि 44 में रिपीटेशन अलाउड है ना यहाँ पर। तो विथ, अभी मैंने कहा विथ रिपीटेशन। तो ये टोटल 2 बॉक्सेस 9 वेज में फिल होगा। अब रही बात, ये बॉक्स कितना, ये बॉक्स कितना? ऑब्वियसली 6 वेज, 6 नंबर है, 6 वेज। तो आंसर हो जाएगा 6 into 6 into 9। आगे बढ़े? Okay, sir, got it. चलो बढ़िया। Yes, sir. हाँ, इसी तरीके से पूछ लेना, क्योंकि अगर मेहुल, कार्तिक, अगर थ्रेड मिस हुआ ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाकी 3 क्लासेस बेकार हो जाएगा। थ्रेड मिस नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आप मिस करोगे मतलब आगे वाला आपको नहीं समझ में आने वाला। आगे बढ़े जी। Yes, sir. चल नेक्स्ट लिखो, सपोज देर आर नंबर्स 0 2 3 5 8। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से बनाना इस बार, ध्यान से। ओके, 5 numbers are there. I want to make 4 digit number. Start. जितने बॉक्सेस मतलब उतने डिजिट नंबर, विदाउट रिपीटेशन, इफ नथिंग इज मेंशन, विदाउट रिपीटेशन। $96, okay, we have one answer. 96, very good. चलो, it seems many have understood. Very good. भाई सोचो कि कंडीशन कहाँ पे है। यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट बनाना है, बट डेफिनेटली यहाँ पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दैट हियर 0 इज नॉट अलाउड। सर क्यों नहीं अलाउ सर? क्योंकि यार ऐसा कोई नंबर होगा 0 5 3 2, तो ये तो 4 डिजिट नहीं हुआ ना। क्यों दीपक? सो दिस इज नॉट अ 4 डिजिट, देयरफॉर यू विल नॉट अलाउ 0 हियर। सो इस बॉक्स के लिए देयर आर 1 2 3 4 ऑप्शंस। लिख दो 4 वेज। अब इस बॉक्स का सोचो, सिर्फ ओनली 1 नंबर हैज बीन यूज्ड,
Which one I am not concerned, but out of 5 numbers, 1 number has been consumed. So 5 minus 1, again 4 left. Therefore, this box will be filled in 4 ways. Out of 5 numbers, 2 numbers used. Therefore, 3 ways. Therefore, 2 ways by symmetry. 16 into 696, correct? I'm sure you have got it. Now, out of these 4 numbers, find out how many are divisible by 2. Next question. I mean, 4-digit number banana hai such that the number is divisible by 2. Please go ahead. Dipanshu, you there in the class? 54. Ankit is getting 54. Anyone else? Okay. 72. 72. Okay, ध्यान से देखो. Now the problem here is the last digit. If it is 0, then every number which is formed is divisible by 2. And if it is not 0, then यहाँ 0 नहीं होना चाहिए. ये परेशानी है. तो इसको आप केस वाइज सोच सकते हो. This is one way. Like, case 1. कि क्या केस? कि if 0 is fixed here, all those numbers ending with 0 will be divisible by 2. What is the other case possible? All those numbers which are even but not ending with 0. So वो 2 हो सकता है, 8 हो सकता है. मैं केस 1 केस 2 करके निकाल करके दोनों को ऐड कर दूंगा. क्यों दिशा? पहला वाला देखना यार, केस 1. 0 यहां पर फिक्स कितने तरीके से होगा? एक तरीके से. ये प्लेस कितने तरीके से भरेगा? सिर्फ 0 अलाउड नहीं करोगे क्योंकि 0 यहां पर फिक्स है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज. 5 नंबर 0 नहीं अलाउ करोगे तो 1 2 3 4. अब 2 नंबर यूज हो गया, ध्यान से सोचना. 2 numbers finished. 5 numbers were there. So this place can be filled in 3 ways. By symmetry, this one 2 ways. 4th is a 12. 12 into 2, 24. आंसर 24 नहीं होगा और होगा. इधर आ जाओ. ऐसे cases where the last digit is either 2 or 8. So the last box, यहाँ condition है, तो यहाँ पे पहले काम करो. So the last box can be filled in 2 ways. अब आ जाओ यहाँ पे. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है यार? यहाँ 0 अलाउ नहीं करोगे, ध्यान से समझना. और जो नंबर आउट ऑफ 2 और 8 जो यहां यूज हो गया वो वाला अलाउ नहीं करोगे. So out of 5 numbers, 2 numbers are not allowed here. So this place can be filled in 3 ways. Now out of 5 numbers, 2 numbers have been used. So this place can again be filled in 3 ways. And this place can again be filled in 2 ways. 9 4s are 36. 36 केसेस ऐसे जो लास्ट में 2 हो या तो 8 हो. 24 केसेस ऐसे जो लास्ट में 0 हो. सो आंसर कितना हो जाएगा? 24 plus 36, 60. राइट? अंडरस्टूड? इफ दिस इज क्लियर, बिकॉज ये 0 रहता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि they can just change the numbers. Until unless you are good at your thinking process, you cannot do questions of this kind.
No formula actually. Wonderful. Wonderful. Try the third one. Same number. 0 क्या क्या था जी? 0 2 3 5 8 ऐसा ले लेते हैं. 0 2 3 5 8. How many 4-digit numbers are there such that they are divisible by 4? Go ahead. Without repetition. Aryama, are you able to follow? Aryama is not answering, or I don't know why. Check out Aryama. If you want me to repeat anything, let me know. Now 4-digit number such that it is divisible by 4. Go ahead, make it fast. Done. $68. Raj is telling 68. Sarabjit 8. Okay. अच्छा राज, अगर मैं ये क्वेश्चन को फिर से बनाऊं डिविजिबल बाय 2, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, स्टॉप सॉल्विंग. अंबालिका लुक हियर. सपोज आई वांट टू डू दिस क्वेश्चन डिविजिबल बाय 2. इसको मैंने पहले आपको बताया केस वाइज. पीपल प्लीज सी हियर, केस वाइज. अन्वेषा, अभी मैं ये ऐसे भी सोच सकता हूं यार कि अगर लास्ट डिजिट 0 हो, या तो 2 हो, या तो 8 हो, तब भी सारे केसेस डिविजिबल बाय 2 हो जाएंगे. तो ये ब्लाइंडली अगर आप करोगे तो ऑल पॉसिबल, 0 यहां आए ना आए, समझ रहे हो? ये 3 केसेस होगा. 5 नंबर में से एक नंबर यूज हो गया, एक नंबर यूज हो गया, तो ये कितना नंबर बचा? 4 वेस, फिर 3 वेस, फिर 2 वेस. सो आंसर कितना हो जाएगा? 12 12 6 72 ways. I think many of you have got 72 in the previous question. Okay. अब इस 72 केसेस में से बताए मुझे क्या हटाने पड़ेंगे? रूपांकर ध्यान से देखना भाई ये वाला. मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि यार मैं वैसे केसेस को हटा दूंगा जो यहां 2 या तो 8 आया था, और जब यहां 2 या तो 8 आया था और यहां 0 आ गया था, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा. तो हाउ मेनी वेज आर देयर? सो दिस विल बी 2 ways एंड दिस विल बी 1 way. 2 नंबर यूज्ड, 5 नंबर है तो 3 ways एंड 2 ways. 3 दूनी 6, 6 दूनी 12. इतने सारे ऑल पॉसिबल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 coming in the first, minus those cases in which 0 is coming, only 0 is coming in the first. 60 cases आएगा ना? पिछले क्वेश्चन का आंसर 60 था ना? देखो जरा. Yeah, many of you have written 60. Ambalik also wrote 60. Correct? All right. So in the same line, I can think that 0 2 3 5 8 है, डिविजिबल बाय 4 चाहिए, तो मैं सोचूंगा हाउ मेनी केसेस आर देयर इंक्लूडिंग 0. क्या क्या केसेस हो जाएगी? आई थिंक 0 से बनेगा 0 8, फिर 2 से क्या बनेगा? 2 0 2 4,
2 8 और क्या बनेगा 3 से 3 2 3 8 3 5 नहीं बनेगा 5 0 नहीं बनेगा 5 2 बनेगा फिर क्या बनेगा 5 8 नहीं बनेगा 8 0 बनेगा करेक्ट ऐसे सोच सकते हैं इसका मतलब कितने केसेस हो गए जी 3 3 6 केसेस सो दिस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज ऑल पॉसिबल केसेस में निकाल ले रहा हूं ठीक है फिर कुछ केसेस हटा देंगे अब 2 नंबर यूज हो गया आउट ऑफ 5 नंबर्स 3 नंबर्स लेफ्ट याद रखना यहां भी 0 आ सकता है क्योंकि जब यहां 28 आया है तो यहां पर 05 हो सकता है so this place can be filled in 3 ways and this place can be filled in sorry क्या होगा जी 3 and then 2 36 केसेस बट ये आंसर नहीं होगा मुझे वैसे केसेस को हटाने पड़ेंगे जब यहां पर नॉन जीरोज नंबर आए थे मतलब क्या 2 8 3 2 5 2 जब ये लोग आए थे यहां पे उसके साथ जो 0 यहां आया था उन केसेस को हटाने पड़ेंगे so 0 can come in 1 way and these can happen in 3 ways this place can be filled in how many ways एक बॉक्स फुल दूसरा बॉक्स फुल तीसरा बॉक्स फुल 3 बॉक्स फुल 5 नंबर 3 यूज्ड तो बच गया 2 ऐसे 6 केसेस आएंगे जो स्टार्टिंग विथ 0 होगा एंड इवन होंगे क्योंकि ये ऑल इवन नंबर्स स्टार्टिंग और नॉट स्टार्टिंग विथ zeros minus all those not even numbers all those numbers divisible by 4 starting with or without 0 minus those numbers divisible by 4 starting with 0 so I think 36 minus 6 will be 30 Ankit got 30 wonderful Ankit you might have thought some other way don't know but answer is 30 that's correct you might have thought this way also केस करके ही किया था ओके केस करके भी कर सकते हो आई डोंट हैव एनफ टाइम अदरवाइज आई वुड हैव शोड यू पीपल घर पे आप बना सकते हो कि 0 अगर आएगा तो 3 केसेस आएगा इधर 082080 और नॉन 0 के केसेस को अलग करके ऐड कर देना आई थिंक आंसर सेम आएगा अंकित हैज डन इट आगे बढ़े everybody write fine if this much is okay ठीक है so I think by this time your thought process on counting might have developed let me take a word great first question how many 5 letter words are possible so you can either write 5 into 4 into 3 into 2 into 1 or you can directly write 5 factorial answer 120 correct next question how many 5 letter words ये 5 letter है ना मैं 5 letter word बना रहा हूं which start with G come on how many 5 letter word which end with T come on question number 4 how many 5 letter word start with T end with A come on how many 5 letter words T and A come together Aryama are you able to follow therefore I had reminded in the morning itself that today you should be on time because एक नहीं समझ में आएगा तो बाकी भी नहीं समझ में आ पाएगा people have given 5 questions make it fast
Done? All right. दिशा देखना यार, स्टार्टिंग विथ जी मतलब जी वन वे होगा, और अच्छा इफ नथिंग इज टोल्ड इट इज अगेन विदाउट रिपीटिशन. ओके, डोंट आस्क योरसेल्फ और मी अगेन एंड अगेन द सेम थिंग. रिमेनिंग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24. लास्ट में 1 आना है, मतलब ये मतलब टी आना है वन वे, सिमेट्री है. ये वाला 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24. इधर टी होना है, इधर ए होना है, मतलब ये वन वे, ये वन वे. करेक्ट. दो लेटर यूज हो गया, टी यूज हो गया, ए यूज हो गया, 3 लेटर बचा 3 जगह पे, 3 फैक्टोरियल 6. T and A come together. T and A come together. Put them in the box. R बच गया, G बच गया, A सॉरी G R E E बच गया. करेक्ट. ये एक बॉक्स में है, इट इज वन एलिमेंट. तो 4 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, 4 प्लेसेस में कितने तरीके से आएगा? 4 फैक्टोरियल. एंड दीज टू, 2 एलिमेंट 2 जगह पे कितने तरीके से रीअरेंज करेगा? 2 फैक्टोरियल. ये भी होना है और ये भी होना है, तो प्रोडक्ट. somebody got 48, that's correct. ठीक है. I think in your schools you might have done such questions. Let's take the next one. Aeroplane, ऐसा किया था ना, रिवाइज कर लो. Aeroplane is how 2 3 4 5 6 7 8 9 letter. First question, number of 9 letter words. Easy ones, make it fast. जिनको याद है, otherwise I'll explain now. Number of 9 letter words. ठीक है. All right. Now, please see here, guys. In the previous question, great, all the letters were distinct. Therefore, I used n factorial. जैसे कि अगर मान लो रैट लेटर्स के कितने वर्ड्स बनेंगे? RAT, RTA, ART, ATR, और क्या होगा जी? TRA and TAR. So 3 distinct letters. How many words possible using all these letters? 3 letter words. So answer is 3 factorial. But in case if this R is also A, समझेंगे बात को, अगर R की जगह A हो गया तो इसमें 2 लेटर आइडेंटिकल हो गए. तो जहां जहां R है वहां वहां मैं A कर दूंगा. Correct. Interestingly, I will see that I have written AAT 2 times, here as well as here. Therefore, I'll erase 1. ATA, ATA, so I'll erase 1. TAA and TAA, so I'll erase 1. Actually, I'm going to get only 1, 2, and 3 cases. Therefore, I am saying that if 2 letters are same, then first of all find out how many all possible words can be made. 3 letter अगर होता है तो 3 factorial. But since because of these 2A, they could have, अगर same होता तो rearrange करता 2 factorial ways में,
देयरफॉर इट विल गेट रिड्यूस्ड, उतने केसेस घट जाएंगे. So 3 factorial by 2 factorial. So answer is 3. सर नहीं समझ में आया. जैसे कि इंडिया, इंडिया में ये कितने लेटर्स का वर्ड है? 1 2 3 4 5. तो कितना लेटर, कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2i है, इसी कारण 2 फैक्टोरियल. समझे? यहाँ पे 2i ही सिर्फ. इन द लाइक मैनर here it is aeroplane. So 9 letter word, so answer will be 9 factorial divided by how many identicals are there? So a कितना है? 1 2, therefore 2 factorial. ये किसके कारण आया? a के कारण. और कुछ? e के कारण. e और e, 2 e है. So there are 2 a's, there are 2 e's. So 2a के कारण 2 factorial, 2e के कारण will be another 2 factorial. So answer is 9 factorial by 4. Write down okay if you have understood. ठीक है? In the same question, how many 9 letter words can you make such that, yes, such that vowels are together? Please go ahead. Vowels are together. Ankita, all okay for you? Raj? Aeroplane word की बात कर रहे हैं. Such that the vowels are together. So you can bundle the vowels first. A, E, E and O. Bundle them. Sir, 8 factorial into 3 factorial by 4. Sir? All cases, क्योंकि अलग अलग होता है तो 5 factorial. Now it has to be divided by, oh, allow me to write it here, okay? It has to be divided by anything? Of course not, because all of them were different. This thing is further multiplied by इसके combinations. ये जो येलो कलर के बॉक्स में मैंने डाला है, इसमें देखो 5 केसेस है, 2 3 4 5. ये 5 खुद ही अपने जगह में 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे. But out of these, do this one separately. So 2 A's, there will be 2 factorial. There will be 2 E's, there will be another 2 factorial. So your answer is this much. Many of you have got it. That's good. ठीक है, चल प्रैक्टिस करते हैं. क्वेश्चन लिखो. थोड़ा रिपीट करेंगे. रिपीट करेंगे, जरूर रिपीट करेंगे. एक और एग्जाम्पल से रिपीट करते हैं ज्ञानेश्वर, तब ज्यादा आपको क्लियर होगा. एक वर्ड लिखो, इंस्पिरेशन. ध्यान से सुनना जी. मैं चाहता हूं कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे, कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर वर्ड है. मुझे 11 लेटर वर्ड बनाना है सच दैट, अब देखो कंडीशन ये लोग डालना शुरू कर देंगे, सच दैट
वॉवेल्स जो है वो एक साथ आए। तो पहले इन सब सारे वॉवेल्स को बंडल कर लो। तो आई कितना है, 1 2 3, तो 3 आई कर लो। और कौन है जी, ए है। और कौन है जी, ओ है। इसको एक साथ एक बॉक्स में डाल दो, ठीक है। अब आ जाओ एन, एन हो गया, एस हो गया, पी हो गया, आर। एन, एन 2 बार है ना जी, देखो एन एन एस पी आर, 5 5 10, क्या बच गया जी, टी, ठीक है। अब ध्यान से देखना जी, इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या है कि कंसिडर दीज एज डिफरेंट एंटिटी। एक आइटम 2 3 4 5 6 7, तो लिखोगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब ये जो 2n है आइडेंटिकल आइटम है, इसी कारण 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। मगर ये लाल वाला बोलेगा बॉक्स, यार मैं भी तो अपने आप में अरेंज करूंगा, मुझे क्यों भूल गए, मुझे भी करो, मुझे भी लिखो ए ओ आई आई आई, ऐसे करके बहुत केसेस बनाओ। फॉर एवरी वन केस आई विल गिव यू दीज मेनी केसेस ऑफ दिस। सो द ये जो रेड वाला है, मैं दोबारा रेड कलर से कर रहा हूं, ये जो रेड वाला का जो वैल्यू होगा, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 आइटम है और 3 आईज आर देयर। Because of these 3 i's, there will be 3 factorial in the denominator. Wonderful. Ankit has written it. Dhaneshwar, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Ha. Everybody write clear if this bundling is clear. Wonderful. चलो फटाफट ड्रिल करते हैं एक। अभी तक हम लोग से बेसिक्स अभी कर रहे हैं, ठीक है। कंसिडर अ वर्ड गायरेशन, कोई भी वर्ड ऐसे है, ठीक है। हाउ मेनी डू नॉट स्टार्ट विथ जी? ऐसे कितने हैं जो जी से स्टार्ट नहीं होते हैं? स्टार्ट। देखो प्रियो, ठीक से सोचो। वन टू थ्री फोर फाइव, कितना है? 3 3 3 6 2 8 है ना, 5 6 7 8। Okay, Ankit is writing, Sarabjit is also writing. All right, people, how many do not start with G? So you can always think, so this place can be filled in how many ways? There are 8 letters, no? There are 8 letters. So this place can be filled in 7 ways, because you will not allow G. अब देखो, यानी एक बॉक्स भर गया। There are 7 boxes and there are 7 other letters and all of them are distinct. So 7 items in 7 places can happen in 7 factorial ways. Rearrange, factorial मतलब arrangement, rearrangement. ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. Answer is this. Ambalika also got it. Why no answer from Shreya, Mohina, Janishwar? जब समझ में भी आ जाए तब भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो, हाउ मेनी words start with G but do not end with N? लास्ट में N नहीं होना चाहिए, मगर फर्स्ट में G होना चाहिए। चलो जल्दी करो।
लास्ट में जी चाहिए, सॉरी फर्स्ट में जी चाहिए बट लास्ट में एन नहीं चाहिए। Okay. Okay, Sarabjit has got an answer. Let me see if it is correct. The first letter should be G and the last letter should not be N. All right. If the first letter is G, it can be filled in one way. Condition था, पहले इस पे काम करेंगे. So जहां जहां condition होगा पहले उसका ways निकाल लो. Ankita, are you there in the class? Not feeling like writing? Now the last one would be what? N नहीं चाहिए, ठीक है, मगर यार ये G भी तो नहीं चाहिए. सर ये तो आपने नहीं बोला था यार, विदाउट रिपीटिशन इफ नथिंग इज मेंशन. मैं बार बार ये कॉमन चीज इसलिए एक बार बोल दिया हूं. सो लास्ट में मुझे N नहीं चाहिए और G जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं वो भी नहीं चलेगा. सो आउट ऑफ 8 लेटर्स 2 letters gone, 6 letters are left. So this place can be filled in 6 ways. So 2 बॉक्स भर गया. Out of 8 letters, 2 places used, 6 are left. Those can happen at 6 places in 6 factorial ways. So your answer is this into this into this. So somebody rightly said. Understood? Next question लिखो, same word gyration. How many words can be formed? सर एक बार फिर से बोलना सर, वो पिछले वाले एक बार फिर से रिपीट करना. हाँ रिपीट करेंगे. देखना कि लास्ट में n नहीं चाहिए, करेक्ट. तो मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि लास्ट में कितने वेज पॉसिबल हैं. So n is not allowed and this fellow G is not allowed because I cannot reuse it. So there are 6 ways of filling this last box. Therefore 6, ये उधर तो 1 हो ही चुका था. अब मैंने देख लिया कि 6 जगह खाली है, 6 अलग अलग आइटम मेरे पास है, 6 फैक्टोरियल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. How many words can be formed such that all 5 consonants are together? Consonants are together. जल्दी. Okay. Others, make it fast. Shreya, I want it from you now. Okay, I think this one is easy. I can see everybody writing it. So I am writing the answer as 5 factorial into 3 factorial, right? Call me up personally if you want me to repeat this. Now, the next question, the same word, gyration. You have to make those words such that, how many words would be made such that vowels go only into even places other than the second. मतलब जैसे कि इवन प्लेसेस क्या होगा, अगर आप नंबरिंग करोगे ऐसे 8 प्लेसेस है ना, तो 1 2 3 तो इवन प्लेसेस होगा ना, 2 4 6 8. तो हाँ जी बोलो सर वो प्रीवियस में 3 फैक्टोरियल कैसे होगा? वो तो
बाहर 3 है, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होगा। ओके, देख लेते हैं इसमें कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है, वॉवेल्स नहीं कॉन्सोनेंट्स, जैसे जी हाँ सर, GYR TN। टी एन। इसको बॉक्स में डाल दिया, क्या हाँ बच सर, गया, ए आई ओ। AIO। हाँ सर, सो वो या आंसर कितना बोल रहे हो जी आप लोग, 3 फैक्टोरियल गलत है। 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इंटू 1 2 5 3 फैक्टोरियल, 4 4 फैक्टोरियल, और ये खुद में 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज 5 करेगा। फैक्टोरियल। हाँ सर, ये गलत है। एग्जैक्टली सर, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होता है। बहुत पिटाई पड़ेगी जो लोग गलत बता रहे हैं इतने। अरे तो मुझे तो आप समझ में आ गया आप लोग का स्ट्रैटेजी, यू गाइस आर वेरी नॉटी। हाँ, क्या कर रहे हो कि कॉपी पेस्ट मार दे रहा है लोग ना, ऊपर वाले का 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, नीचे वाले का भी कॉपी पेस्ट। अच्छा, और मैं जब देखता हूँ सेम आंसर इतने लोग आए तो मैं सोचा छोड़ो यार। थैंक यू जानेश्वर, थैंक यू सो मच। अदर्स राइट करेक्टेड, आपको पनिशमेंट 2 बार लिखो करेक्टेड, आपके लिए पनिशमेंट है। ओह सर डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई 4 फैक्टोरियल। ओके, GYRT और एक हो गया N, इसको एक बॉक्स में डाल दिया दिशा, और जो बच गया A, ये बच गया O, ये I। तो देखो ये जो बॉक्स में है इसको मैं 1 आइटम पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। ये जो 4 आइटम है ये चारों अलग अलग है ना, तो ये 4 जगह पे कितने तरीके से आएंगे, 4 फैक्टोरियल वेज। अब ये GYRTN बोलेगा, यार मेरा क्या होगा, मैं भी तो RYGTNNT, मैं भी तो अपने में बहुत सारे केसेस बनाऊंगा। तो मैंने पूछा कितना, तो 5 अलग अलग आइटम कितने तरीके से अरेंज करेगा, 5 फैक्टोरियल। अब कुछ लोग कंफ्यूज है कि प्लस करे कि इंटू करे। भाई अगर आपको बनाना है ये पूरा क्वेश्चन तो इस ये भी चाहिए ये भी चाहिए, सो एंड मल्टीप्लाई everybody, not especially Disha, is that okay Disha? Wonderful, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Vowels go only into even places other than second. So 1 2 3 4 5 6 7 8, so numbering कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, so even places are 2 4 6 8. So what are the vowels? A है, तो 2 में तो नहीं जाएगा ना, अदर देन सेकंड हाँ बोला है। 2 में नहीं जाना है। Okay, Sarabjit has an answer. What about others? Deepak says 5 factorial into 9. Okay. 6 factorial. Acha. Those who are not able to give the correct one, I don't know whose is correct. Let us see. People, question को ध्यान से समझो। Vowels go only into the even places. पहले vowels तो पता चले कितने हैं, 3। तो 3 वॉवेल को ऑब्वियसली 4 प्लेस में नहीं जाएगा, मगर 2 में वॉवेल नहीं आना है। अब ये है 3 आइटम, 3 आइटम को सिर्फ 3 जगह पे मैं रख सकता हूं। 3 आइटम को मैं सिर्फ 3 जगहों पे रख सकता हूं। कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल हो गया। किसका काम हो गया, वॉवेल्स का काम हो गया। अब बच गया ये मेरा कोशिएंट, सॉरी कॉन्सोनेंट्स, तो GYRTN। अब ये 5 कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे कि मेरे पे तो कोई कंडीशन नहीं है यार। These 5 consonants will tell I have been given no condition. So now they will look for places. So what are the places for them? 1 2 3
4 नहीं, बट ये वाला भी तो 5, येलो कलर, राइट? So 5 consonants, very easily they have 5 places. They will occupy them in 5 factorial ways. 5 आइटम 5 अलग अलग जगहों पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल वेज, शॉर्टकट मैंने बताया था. Congratulations Sarabjit, Debapriyo, Dipanshu and all those who have not copied the answer from somebody else. अच्छा, is that okay guys? People सर इसमें 6 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? अच्छा चलो 6 फैक्टोरियल सिर्फ क्यों लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 6 कौन सा आइटम, मतलब ये वाला 5 और ये आप बोल रहे हो 1 आइटम. इसका मतलब क्या होता है ज्ञानेश्वर? देखो, अगर आप 6 फैक्टोरियल बोलते हो, इसका मतलब कि ये ए आई ओ किसी भी एक जगह आ जाएगा, तो ये कंडीशन प्लेस वाइज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये 7वें पोजीशन पे भी आ सकता है, मतलब 5वें पोजीशन पे भी आ सकता है. अब 5वें में ए आई ओ तीनों तो नहीं बैठेगा. अब इसमें आपको फिर नंबरिंग कैसे करोगे? नंबरिंग के अंदर नंबरिंग फिर आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आप इसको अलग से कंडीशन वाइज सोचो. आई नो दिस कंडीशन वाला थोड़ा सा परेशान करता है लोगों को, बट यू नो, hope I am able to explain it clearly to you. And if you can understand it clearly, believe me, by the time we do the 3rd or the 4th class, you will be able to count things very well. And this is going to be a game changer when you do topic on numbers. There you will feel very comfortable when we play with numbers. Right, next, if you want me to go to the next slide. I'll give you one more question on conditions. आपको समझ में आएगा. एक और प्रैक्टिस करो. मान लो एक वर्ड है मिस्टेक, गलती से मिस्टेक. How many 7-lettered patterns without repetition can be formed using all the letters so that the vowels come only in the even places? Practice करो. कितने 7 letters बनाओगे such that vowels occupy only even places? Practice करो. Okay, I can see some of you are getting the answers, so it seems you are able to understand. So 3 3 6 1 7 7 है, 3 3 6 1 7. इवन ऑड प्लेसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले तो मैं इनका प्लेसेस डिफाइन कर दूं. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, ये ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस हो गया. ना वॉवेल्स, व्हाट आर द वॉवेल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा अलग कर लूं. वॉवेल्स क्या क्या है? आई है, ए है, ई है. वॉवेल्स के पास इवन प्लेसेस, बहुत अच्छी बात है यार. 3 आदमी 3 जगह है, कितने तरीके से बिठाएंगे? अब मेरे पास कॉन्सोनेंट्स बच गए एम एस टी के. अब 4 कहाँ बैठेगा? या तो यहाँ ये 4 प्लेसेस बचे हुए हैं. तो 4 आइटम एट 4 डिस्टिंक्ट प्लेसेस कैन हैपन इन 4 फैक्टोरियल वेज. कुछ लोगों को अभी तक हजम नहीं होता है कि मैं मल्टीप्लाई क्यों कर देता हूँ. फिर से देखो, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 7 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड. कितने 7 लेटर वर्ड्स बन सकते हैं? तो सिर्फ 3 लेटर वर्ड या तो 4 लेटर वर्ड बनाने से चलेगा क्या? आपको तो 7 पर काम करना है. तो 7 लेटर वर्ड तब बनेगा जब आप ये कंडीशन फॉलो करोगे, एंड ऑटोमेटिकली ये कंडीशन फॉलो होना ही पड़ेगा.
So this condition and this condition, therefore product. Hope I have justified every simple plus multiply and all. Disha is also getting the same. Wonderful. एक और practice करेंगे जी. So in the same question, this is the one question. The second one you write. Vowels go only at odd places. Vowels go only at odd places. First one is over, right? Four factorial into 4 factorial. 24, 24, 5, 76. Okay. Good. Sarabjit is picking up. That's fine. All right. The vowels go only at the odd places. So I have the vowels A, I, A, E. भाई odd places मतलब क्या? कि मैं या तो vowels को यहाँ रखूंगा या तो यहाँ, यहाँ या तो यहाँ. ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को. तो कॉन्सोनेंट्स कितने बच गए? 1, 2, 3, 4. Now, the consonants could go to any of these. I have not explained combination. Okay. Let us talk about the vowels first. These vowels could go at 1, 3, 5 or 7. Okay. अंकित एक चीज बताओ कि 4 प्लेस है, 3 आइटम है, मगर आइटम को तो बैठ जाना है, मतलब आई ए ई को तीनों को खत्म हो जाना है. दे आर सपोज टू सिट. आइटम नहीं बचने चाहिए. तो ये आई कहेगा कि मेरे पास 4 ऑप्शन. अग्री? या तो मैं 1 पे जाऊंगा, या तो 3 पे जाऊंगा, या तो 5 पे जाऊंगा, या तो 7 पे जाऊंगा. फिर ए बोलेगा मेरे पास कितने ऑप्शन? कितने ऑप्शन? 3. क्योंकि जहां आई बैठ गया उसके गोद पे तो नहीं बैठ जाएगा जाके ए. सो फॉर ए द ऑप्शंस आर ओनली 3. दिस इज फॉर दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड एनसीआर एनपीआर. उनको नहीं आता और वो सीखना भी नहीं चाहते. तब भी हम लोग ये पूरा टॉपिक चारों क्लास कर सकते हैं. फिर भी आई सेज कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ways of me going into the 4 places. Then A says I have 3, then definitely E says I have 2. So if I say I, A, E, they have these many ways. Then the chance comes of M, S, T, K. ध्यान से सुनना जी. M, S, T कितने आइटम्स है? 1, 2, 3, 4. 3 आइटम बैठ गया तो कितना प्लेसेस बचा? 4 places left. 3 आइटम मतलब वॉवल्स अगर बैठ गए, कहीं भी गए होंगे, 1, 3, 5 में गए होंगे, या तो 3, 5, 7 में गए होंगे, तो कितने प्लेसेस लेफ्ट? 4. एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? 4. तो 4 कॉन्सोनेंट्स को 4 जगहों पे कितने तरीके से आप कर सकते हो? 4 factorial. अब सर मैं ना एग्जाम में प्लस कर दिया, ऑप्शन में था मैंने प्लस कर दिया. भाई इस वर्ड को पूरा आपको बनाना है, तो ये कंडीशन भी चाहिए, ये कंडीशन भी चाहिए. देयरफॉर प्रोडक्ट. राइट बिंगो इफ यू हैव अंडरस्टूड. सो आंसर इज कितना? 4 × 12 24. 24 into 4. I think Sarabjit, your answer and my answer same, right? Yeah, because yours is 4 factorial. I don't know if you have thought it this way. Or if your thought process was a little wrong, still you got the correct, or it is the same. Let me write. Let me know. Write same or different.
वंडरफुल वंडरफुल. सो योर आंसर इज 4 फैक्टोरियल, मतलब कितना 576 ना यार, ये 24 जा 576. एक और प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके का ऑड इवन वाला. इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं. ज्ञानेश्वर ध्यान से देखना भाई. मान लो ज्ञानेश्वर है और कार्तिक है, सरबजीत है, ठीक है, एंड दिशा है. 4 people are there and there are 6 chairs. ध्यान से सुनना. चेयर्स हैं ये एंड पीपल है. इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ वेज 4 people sit on 6 chairs. सोचो. सिक्स इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. दीपक को समझ में आ गया है लगता है. अब तो दीपक फोड़ देगा. पढ़ाई शुरू करो जी, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो. यू गाइस कैन डू रियली वेल, है ना. थोड़ा सा अपना पबजी मोदी जी ने तो हटा ही दिया, तो कुछ लोग जो पबजी के शिकार हो रखे थे कुछ साल से, कुछ नहीं हो रहा था उनका, अब लगता है आगे भविष्य में कुछ होगा. ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं. मेरा तो मन करता है कभी कभी कि एज या तो क्राइटेरिया हो जाना चाहिए. या ये जो आप लोग के आ रखे हैं ना, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, अच्छा अब फौजी आ रहा है अमेजन प्राइम. अभी आज के ज़माने में अभी लाइक यू गाइज, मेनी ऑफ योर करियर्स आर गेटिंग ruined बिकॉज ऑफ दिस अमेजन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स एंड ऑल. ये सब नहीं होता तो महीने में आदमी एक बार मूवी थिएटर जा करके देख सकता था. आजकल तो डेली दिन भर में लोग 3 4 सीरीज देख जाते हैं. तो अच्छा पबजी चल रहा है सर. अरे कार्तिक, वो शायद लैपटॉप में चल रहा है ना, मोबाइल में तो खत्म. वरना लोग बाथरूम में भी मोबाइल ले जाते कंटिन्यू करते हुए. हाँ अच्छा ओके, आई थिंक दिस विल बी द अभी भी लास्ट. साइट में आ रहा है. हाँ साइट में आ रहा है, लैपटॉप में शायद चलता है, मैंने भी सुना है. अरे वीपीएन जिंदाबाद. बहुत तुम लोग हाई फाई हो गया भाई दीपक. चलो ठीक है. आई थिंक जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना दिशा, आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन. सर क्या पूछना है खुद को कि भाई, बिकॉज आई डू इट दिस वे एंड आई फाइंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम एबल टू सॉल्व. व्हाट नीड्स टू गेट ओवर. ये लेमैन तरीके से अपने आप से पूछो कि भाई क्या खत्म हो जाना है. चेयर सारे खत्म हो जाएंगे ये क्वेश्चन को बनाने के बाद कि लोग खत्म हो जाएंगे जैसे कंज्यूम हो जाएंगे. ऑब्वियसली योर आंसर इन दिस केस विल बी व्हाट, पीपल और चेयर. राइट डाउन, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाट नीड्स टू गेट ओवर, पीपल और चेयर. पीपल, क्योंकि ऑब्वियसली 6 चेयर है तो 4 ही तो लोग हैं. चेयर बच जाएगा, लोगों को बिठाना है, बिकॉज 4 people नीड टू सिट. तो स्टार्ट विद द पीपल, मतलब कि कैलकुलेशन आप पीपल पे करना. पीपल से पूछो, ज्ञानेश्वर से पूछो हाउ मेनी ऑप्शंस ही हैज. ही विल से आई हैव 6 ऑप्शंस, 6 ways. कार्तिक विल से ऑफ कोर्स आई विल नॉट सिट ऑन हिज लैप, सो आई विल ओनली बी लेफ्ट विथ 5 ways. सर मैं ज्ञानेश्वर से पहले नहीं पूछूंगा सर, पहले मैं ना दिशा से पूछूंगा. तो ऑब्वियसली सेम ही होगा ना. ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. समझ रहे हो? आंसर इज दिस. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स राइट? राइट, ओके. एंड लेट्स कैच अप आफ्टर द ब्रेक एट 1 PM. Thank you so much everyone. I'm ending the call. We meet at 1 PM, okay?